Dear students of class 12th entrepreneurship, very good afternoon to all of you. Our today's topic is steps in setting up of an enterprise. To establish an enterprise, to establish a business unit, an entrepreneur has to take various steps. Let us know. For beginning the question, you can write following steps are involved in setting up of an enterprise. Number one, idea of self-employed. Number two, analysis of entrepreneurial environment. Number three, project identification. Number four, selection of the product. Number five, selection of organization. Number six, preparation of project report. These are the main steps involved in setting up of an enterprise. In addition to these steps, there are some other steps also. Let us discuss these one by one. This idea of self-employed. This is the first step an entrepreneur must take into account. See, unemployment is the biggest problem in India, isn't it? It is increasing day by day. Unemployment problem is increasing day by day. One of the solutions of the problem, this unemployment problem, is to motivate the unemployed youth to opt self-employment programs. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट को या रिसोर्सफुल पर्सन्स को अनएम्प्लॉयड यूथ को मोटिवेट करना है कि वो ऑप्ट करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो लोन मिलते हैं या ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं जो ऑफर करती है गवर्नमेंट, या सब्सिडीज वगैरह. तो इसमें मोटिवेट कैसे कर सकते हैं हम यूथ को? वी कैन मोटिवेट देम बाय टेलिंग देम दैट दे कैन बिकम बिग मैनेजर्स, owners of business units. They can be the employment generators. They can provide employment to other people. They can own their own units or industries. Before taking the decision of self-employment, following conditions are important. एक एंटरप्रेन्योर को अगर यूथ ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एग्री करता है तो डिसीजन लेता है कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही उसी पर ये कायम रहूँगा कि अपना ही बिजनेस यूनिट कायम करूँगा, इस्टेब्लिश करूँगा. तो उसको किन कंडीशंस की ज़रूरत है? दैट द पर्सन शुड possess knowledge, skill, experience and managerial aptitude. Number one. Number two, availability of resource. एक क्वालिफाइड पर्सन, वेदर मेल और फीमेल, उसके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, मैनेजरियल एप्टीट्यूड. ये ट्रेनिंग्स उसको ऑलरेडी होनी चाहिए. नंबर टू, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी सबसे बड़ा चीज कैपिटल होना चाहिए, या कहाँ से सोर्स ऑफ कैपिटल उसको होना चाहिए. नंबर थ्री, सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है वो उसको मिलनी चाहिए. असिस्टेंस फ्रॉम बैंक्स, बैंक लोन मिलना चाहिए या असिस्टेंस मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास होने चाहिए. 5 कंडीशंस आर देयर: knowledge, skill, experience and managerial aptitude, availability of resources, subsidies provided by government, assistance from banks, financial resources and other things. Now the second step, that is analysis of entrepreneurial environment. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज करना है एक एंटरप्रेन्योर को. एन एंटरप्रेन्योर should analyze the business environment.
अगर उसने असेसमेंट की एनवायरनमेंट की तो फिर क्या है, आफ्टर टेकिंग द डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको कब ये एनालाइज करना है, जब वो ये डिसीजन लेता है कि अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयड ही बनूंगा, मैं अपना बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश करूंगा। आफ्टर टेकिंग द डिसीजन टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, the person or the entrepreneur should analyze the business environment or entrepreneurial environment. This business environment is influenced by, it is affected by the administration or legal factors. There are rules and regulations of the government. Administration is always behind the industry's business units, whether they are functioning reasonably, properly, as per the government directions or not. Therefore, he should study the opportunities and programs offered by the Small Scale Industries Association. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, उसकी तरफ से जो उनके प्रोग्राम्स, अपने प्रोग्राम या अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो ऑफर करते हैं, उनको स्टडी करना है एक एंटरप्रेन्योर को या उस द पर्सन हु इज गोइंग टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस यूनिट. एंड नंबर थर्ड स्टेप, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन. Selection of right type of project plays an essential role in the success of an enterprise. अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमें एस्टेब्लिश करनी है, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसमें क्या है, राइट टाइप ऑफ सिलेक्शन या राइट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई अच्छी तरह करना है. दैट इज मस्ट फॉर getting the successful enterprise. Project identification helps to analyze the profitable opportunities and future improvement of the organization. जो आइडेंटिफिकेशन है प्रोजेक्ट की, ये तो एक स्टेप है, थर्ड स्टेप है यहाँ पर. किसके लिए, सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज. एंटरप्राइज सेट करने के लिए, बिजनेस यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना है अच्छा सा प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट की चॉइस कर पहले आइडेंटिफाई करना है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज द प्रॉफिटेबल वन, विच ऑफर इज द प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी फॉर एन एंटरप्रेन्योर, एंड इट विल बी इन फ्यूचर द इंप्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट. अब हमें अभी तक प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन थी, लेकिन अब प्रोडक्ट सिलेक्शन है. अब हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्रोडक्ट कौन कौन सा रखना है, किस प्रोडक्ट की बिजनेस करनी है. सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन. जो मार्केट की कंडीशन है उस पे दारमदार है. मार्केट की हालत क्या है, तो हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं. किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है मार्केट में, कितने लोगों की चॉइस है, ये प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, अपनी बिजनेस उसी पे फोकस करना है, हमें वही बिजनेस सेट करनी है. द नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग राइट चॉइस ऑफ प्रोडक्ट. जब हम प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं, उसमें क्या है, एंटरप्रेन्योर को उसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इसकी क्या ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी डिमांड की कैसी है मार्केट में, तो लोगों का रुझान कैसा है इस प्रोडक्ट की तरफ, और स्किल होनी चाहिए, इसकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर को. इट आल्सो नीड्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. रॉ मटेरियल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक मैन पावर, कैपिटल, मनी एंड अदर थिंग्स. उसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जब हमने आइडेंटिफाई किया प्रोजेक्ट को, ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया, फिर प्रोडक्ट को भी सिलेक्ट किया, अब हमें सिलेक्ट करना है बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को, कौन सी फर्म चाहिए हमें. द सिलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज. हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, the selection of organization is depends upon these resources which are available to us. For example, मैन पावर क्या है, वो तो हो सकता है, लेकिन मनी और कैपिटल, दिस इज द मेन थिंग.
मटेरियल, मेथड्स, जो हमारे पास स्किल है उनकी जरूरत है। इट इन केस ऑफ सेल्फ ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अगर सेल्फ ओन्ड है, वन पर्सन इसको हैंडल करता है, तो फिर ज्यादा ये वर्किंग कैपिटल हमें जरूरत नहीं है। अमाउंट, स्मॉल अमाउंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म, in case of large scale industry, or in case of partnership of a firm, partnership firm, two or more persons and much amount is required। लेकिन इन दोनों चीजों में अगर हम स्मॉल अमाउंट की ये सेल्फ ओन्ड बिजनेस करते हैं, उसमें भी रिस्क फैक्टर है, रिस्क इज देयर। और जो ये है पार्टनरशिप वाली बात, यहाँ पर मच अमाउंट लगता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन देयर कैन बी एडवर्स इफेक्ट्स to the business। And lastly, number 6, preparation of project report। जब हम प्रोजेक्ट की सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुई, आइडेंटिफाई भी हुई, प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हुआ, अब हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, क्योंकि इसमें कंडीशंस है। एंड एंटरप्रेन्योर हैज टू प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिगार्डिंग एंड रिलेटेड टू द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, जो उसने ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट की एंटरप्रेन्योर ने, उसके लिए उसको एक रिपोर्ट तैयार करना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वो हम अगले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स इसमें जरूरत है। यानी ये इसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, इट कंटेन्स वेरियस इंफॉर्मेशन, दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने में, टोटल लैंड, और लैंड कितनी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो हम बिजनेस सेट कर रहे हैं, तो टोटल लैंड क्या है एंटरप्रेन्योर के पास, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज फ्यूचर में बढ़ने वाला होता है। जब लैंड होगी तो बिल्डिंग बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन का साइज और वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ रूम्स, बिल्डिंग्स भी इंक्रीज हो सकता है। Dear students, I think I must conclude